We can prepare alcohol by using Grignard reagent. What is Grignard reagent? Actually, Grignard reagent is a very reactive nucleophilic reagent. Suppose we have methyl chloride or methyl halide like CS3Cl. When CS3Cl treated with magnesium metal in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, carbon chlorine bond is broken down and insertion of magnesium occur, means metal and carbon bond is formed, and you know very well metal is more electropositive than carbon, so it have partial plus and carbon have partial minus, one complete positive charge present on magnesium, and due to this reason Cl minus held with magnesium by electrostatic force of attraction. And in this compound, CS3Mg bond is a organometallic bond, and those compounds which have organometallic bond are called organometallic compounds. So Grignard reagent is a well-known example of organometallic compound. When Grignard reagent act as nucleophilic reagent because CS3 part have negative charge. That's why Grignard reagent always behave like nucleophilic reagent. How we can prepare alcohol? One advantage of Grignard reagent is we can prepare primary alcohol, secondary alcohol as well as tertiary alcohol by using Grignard reagent. One by one I will discuss each. Firstly, suppose we have methyl magnesium chloride CS3MgCl. When this compound react with formaldehyde. Now question is why formaldehyde undergo chemical reaction with Grignard reagent? Because Grignard reagent behave like nucleophilic reagent and carbon have electrophilic center. Nucleophile always attack on electrophilic center of carbonyl compound. मीन्स यहाँ पर इसके लिए अटैकिंग सेंटर अवेलेबल है, जो CH3 का नेगेटिव पार्ट है वो कार्बन के पॉजिटिव पार्ट पर जाकर अटैक करता है, तो बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता, कार्बन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड बिकॉज इट्स कोवेलेंसी मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4। कार्बन इज अ मेंबर ऑफ सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड के मेंबर में मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, तो तुरंत पाई बॉन्ड का क्या हो जाएगा बच्चों, डीलोकलाइजेशन। और डीलोकलाइजेशन होते ही इसमें स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, सी सिंगल बॉन्ड सी single bond H, methyl group attached with carbon, so carbon methyl bond is broken down and O have complete negative charge. Due to this reason magnesium 2 plus held and Cl minus also. Now this compound undergo hydrolysis. Hydrolysis means breaking of bond by using water. वाटर की मदद से हमें इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है। कैसे करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो आपको पता है वाटर में H प्लस है, H प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट के साथ जाएगा, OH माइनस इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट के साथ जाएगा, तो इससे आपको MgOHCl एक जो है पार्ट हो गया, और जो आपका मेन कंपाउंड है CH3CH2OH, this one is a primary alcohol. Why primary alcohol? Because the carbon which have OH group directly connected with only one carbon, directly connected with only one carbon, that's why this alcohol is a 1 degree alcohol. Is it clear? तो इसका मतलब हम प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, मीथेनल। इफ मीथेनल is used, definitely product is primary alcohol. And what is byproduct? Byproduct is form MgOH and Cl. Is it clear? और एक एग्जांपल से इसको सीखते हैं। सपोज मेरे पास है साइक्लोहेक्सेन Mg एंड Br, ठीक है जी, और हमने इसका ट्रीटमेंट किया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इज अ सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। आपको पता है अगर फॉर्मल्डिहाइड यूज किया तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल।
ठीक है जी। अब बेटा इनमें कार्बन जो मैग्नीशियम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मीन्स ये वाला कार्बन कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक। ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आपके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, मीन्स बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। अब कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक हो गया, बट ऑक्सीजन कार्बन के जो पाई बॉन्ड हैं वो ऑक्सीजन की तरफ डीलोकलाइज होंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होने लगी 5 और आपको पता है मैक्सिमम कोवैलेंसी कार्बन की क्या होती है, 4, क्योंकि ये किस पीरियड का मेंबर है, सेकंड पीरियड में यस और पी ऑर्बिटल होता है, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी पॉसिबल है ओनली 4। ठीक है जी। अब ये रिंग सिस्टम एज अ न्यूक्लियोफाइल आपके कार्बन पर अटैच हो गया और ऊपर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड O माइनस and Mg2 plus electrostatically join with O minus and Br minus. Now on hydrolysis, hydrolysis means breaking up bond by using water. हाइड्रोलिसिस भी किस तरह से होगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में हाइड्रोलिसिस होनी बेटा, H पर प्लस है, OH पर माइनस है, प्लस पार्ट अटैच विथ माइनस पार्ट and minus part attached with plus part. So in this way, what compound is formed? Compound is formed cyclohexane, CH2 and OH means cyclohexyl methanol, and byproduct is MgOH Br. Similarly, we can prepare secondary alcohol also. Secondary alcohol, any other aldehyde, when any other aldehyde other than formaldehyde, like we have CS3 MgBr, that is also a Grignard reagent. CS3 part act as nucleophile, and due to this reason this magnesium have partial plus and one complete plus due to the Br minus. When treated with any other aldehyde like ethan ethanol, this compound is called ethanol. So methyl attack on where? Carbon, carbonyl carbon. Because carbonyl carbon have partial plus, it behave like electrophilic center. So nucleophile attack on electrophilic center. अब कार्बन के 5 बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गए तो तुरंत ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे टूवर्ड ऑक्सीजन। रिजल्ट क्या आता है बच्चों? रिजल्ट आ गया CH3 C H तो पहले से ही था, एक और मेथिल अटैच हो गया आपके कार्बन से जो हम रेड पेन यूज करके बना रहे, देन O minus and O minus get attached with Mg2 plus and Br minus. Now this compound undergo hydrolysis. This compound undergo hydrolysis. What is hydrolysis? Breaking up bond by using water. कैसे ब्रेक करना है बच्चों? H पे क्या है प्लस, OH माइनस, प्लस पार्ट अटैच विथ O and minus part attached with Mg. So resulting compound is CH3 CH OH CH3 means secondary alcohol. This alcohol is an example of 2-degree alcohol. Actual IUPAC name of this alcohol is propane to all. Propane to all. Why this alcohol is a secondary alcohol? Very common and easy question. Because the carbon which have OH group directly attached with 2 carbon. That's why this one is called secondary alcohol. Means secondary alcohol वो alcohol होते हैं जिसमें OH group रखने वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, और इसका बाई प्रोडक्ट बच्चों क्या होगा, MgOH एंड Br. तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए अदर देन फॉर्मल्डिहाइड लेना है, अदर देन एनी एल्डिहाइड बट नॉट फॉर्मल्डिहाइड। अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो डेफिनेटली क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। कोई और एल्डिहाइड लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और अगर आप कीटोन यूज कर लेते हैं बच्चों तो टर्सरी अल्कोहल बनता है। एक एग्जांपल हम टर्सरी का भी डिस्कस करना चाहते हैं। थर्ड केस, suppose we have
मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसमें मेथिल पार्ट क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, और मेटल इसके वजह से इस पे पार्शियल प्लस, कंप्लीट प्लस, Br माइनस। व्हेन दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कीटोन, कीटोन कौन सा ले रहे हैं, सिंपलेस्ट कीटोन ले रहे हैं बच्चों, एसीटोन। कौन सा कीटोन ले रहे हैं, एसीटोन। एसीटोन इज आल्सो नोन एज प्रोपेनोन। यहाँ पोजीशन मेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कीटोन कार्बन कार्बन के इन बिटवीन होता है। अब यहाँ भी ऑक्सीजन पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उस पर पार्शियल माइनस और कार्बन पर पार्शियल प्लस। इसका मतलब आपके जो कार्बन पर चार्ज है प्लस, इस वजह से कैसा नेचर का है, इलेक्ट्रोफिलिक। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, बहुत सिंपल आंसर है इसका, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, कार्बन के बॉन्ड 4 से ज्यादा हो नहीं सकते, बट यहाँ 5 बनना स्टार्ट हो गए, तो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ और एक नया स्ट्रक्चर जो ड्रा होगा वो कैसा होगा और देखते हैं, CH3C। एक जो नया CH3 आया ये वाला है, देन CH3, और ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है बच्चों, नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिकली कौन जुड़ गया, Mg2 प्लस एंड Br माइनस। बस बहुत सिंपल है, इसको हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग अप बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर। बॉन्ड को हमें तोड़ना है वाटर की हेल्प से, और आपको पता है H प्लस कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट के साथ, OH माइनस कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट के साथ। वाटर के साथ जब आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या बनेगा बच्चों, टर्सरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। और बाई प्रोडक्ट हर बार की तरह सेम होगा, बाई प्रोडक्ट इज MgOH Br। और ये कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या क्या बना सकते हैं, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी एल्कोहल बाय यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल बाय यूजिंग एनी अदर एल्डिहाइड, और टर्सरी एल्कोहल वी कैन प्रिपेयर बाय यूजिंग कीटोन। कोई और एक एग्जांपल लेकर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज मेरे पास एक साइक्लिक कीटोन है, ध्यान से समझिए आप इसको, अच्छा एग्जांपल है, बोर्ड में बहुत क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। सपोज वी हैव CH3Mg Br, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इस पर कार्बन पर कैसा चार्ज है, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस। Mg पर कैसा है, पार्शियल प्लस, एक कंप्लीट प्लस और Br माइनस। मेरे पास सपोज कीटोन है और मैंने आपको बताया है बच्चों कि अगर हम कीटोन लेते हैं तो डेफिनेटली जो एल्कोहल बनने वाला है वो कैसा होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। अब आपको लग रहा होगा ये कीटोन तो है ही, इस पर पार्शियल प्लस कहाँ है, कार्बन पर, पार्शियल माइनस कहाँ है, ऑक्सीजन पर। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, ये कार्बोनिल कार्बन। तो मेथिल जो आपका न्यूक्लियोफाइल है कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि वो एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल है, और तुरंत पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। और डीलोकलाइजेशन होते ही एक एडक्ट बनता है। कौन सा एडक्ट बनेगा और देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग है, O पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। यहाँ पर एक और कौन अटैक कर दिया, मेथिल। अब माइनस चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिकली कौन जुड़ गया, Mg2 प्लस एंड Br माइनस। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इनकी हाइड्रोलिसिस हमें करनी है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग अ बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर। तो वाटर में क्या है, H प्लस OH माइनस। अब H अगर आप ध्यान से देखें तो O पर माइनस है तो H पर प्लस है, ये साथ हो जाएंगे। और Mg पर 2 प्लस है, एक प्लस मैनेज कर रहा है Br, तो दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, OH माइनस। तो डेफिनेटली इससे जो प्रोडक्ट बनने वाला है, आई होप 3 डिग्री होगा। जरा चेक करो आप, मेथिल OH। अब बहुत ध्यान से आप लोग देखिए बच्चों कि जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 1 मेथिल ग्रुप, ये CH2, ये CH2। तो टोटल 3 कार्बन इसमें हो गए, इस वजह से इस एल्कोहल को कहेंगे क्या, 3 डिग्री एल्कोहल। अब समरी इसकी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल भी बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हमें फॉर्मल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा, मींस मीथेनॉल यूज करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए अदर देन मीथेनॉल, मतलब मीथेनॉल को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड आप ले लीजिए, वहां पर सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। और अगर आपको टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो डेफिनेटली आपको कीटोन लेना पड़ेगा, मींस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ऑल टाइप ऑफ अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज इसको रिवाइज कीजिए, अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय भारत।